You all in today's life system. Students, today we are going to talk about the last topic of this chapter, that is the political parties. We are talking about political parties, and it will be the last session of this chapter. And today the topic that we will cover, it will be the challenges to the political parties. Okay, challenges to the political parties. Second topic will be how the political parties can be reformed. Okay, how political parties can be reformed. And the last topic will be MCQs based on this chapter. Okay, so stay with me and watch the video till last. And this is the very important topic for this chapter. And from here the question is always asked in the examination, either what are the challenges to the political parties, or what how the political parties can be reformed. Okay, so let's have a look over the chapter. Students, when this question will be asked in the examination, that what are the major challenges to the political parties, then you have to write any 4 point, at least any 4 points from this that we are going to talk about. Okay, so the first challenge is challenges to the political parties. The first challenge is the lack of internal democracy. Okay, remember, lack of internal democracy. Okay, lack of internal democracy. Now you will be thinking that what is the sense of lack of internal democracy. Okay, इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्टीज़ में कैसे इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी की किस तरह से कमी है. तो मैं आपको बताऊं. फॉर इंस्टेंस यू मे से दैट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी पार्टी and about its president are the big positions of the party. Okay, like there is a party INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, इंडियन पॉलिटिक्स से. तो अगर इनके हम अध्यक्ष की बात करें, इनके चेयरपर्सन की, प्रेसिडेंट की बात करें, तो द मेंबर बिलोंग्स स्पेशली टू एनी फैमिली, है ना, कि इसका जो मेंबर होगा मीन्स ये जो चेयरपर्सन होगा कहीं ना कहीं वो किसी एक स्पेसिफिक फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा, है ना, या फिर इनकी जो मीन्स बड़े मीन्स पोजीशंस होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ एक फैमिली तक ही सीमित होंगे. ओके, बट डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी. ओके, इक्वालिटी ऑफ एवरीथिंग. ओके, either it may be opportunity, either it may be education or right something. So when democracy stand for equality, then how any of the position, any of the post of any era will be concentrated or confined to only single hand or single family. Okay, so this is the problem. Now I have given you the example also. Once upon a time there was a slogan in India of that one family party. ओके, व्हाट, वन फैमिली पार्टी. भारत में कभी एक बार ऐसा था जब एक नारा दिया जाता था वन फैमिली पार्टी. अब इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा. मैंने आपको ठीक सा एग्जांपल आईएनसी का दे दिया है कि आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसी के बारे में ये स्लोगन दिया गया था, वन फैमिली पार्टी. दैट मीन्स इसका जो चेयरपर्सन होगा या इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो कहीं ना कहीं किसी एक स्पेसिफिक फैमिली से बिलोंग करेगा. ओके, नाउ एट इट इज़ ऑल्सो, ये आज के भी डेट में, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, बट द एक्चुअल थिंग दैट वी हैव टू नो इज़ दैट the chairperson of or the president of this particular party was from a single family. Okay, so here we are talking about the lack of internal democracy in the political parties is the first challenge of the political parties. There should be equality and there should be the equal opportunity provided to all followers, members and the active members and the leaders, that they could lead the parties. Okay, so I hope you all have get it. First challenge is the lack of internal democracy within the party. All over the world, there is a tendency in political parties towards the concentration of the power in one or few leaders at the top. Okay,
कहीं ना कहीं जो पावर का जो कंसंट्रेशन होता है वो कुछ एक लोगों के ही हाथों में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की एक टेंडेंसी रही है। और मैंने अपने इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको वहाँ से भी एक एग्जाम्पल बताया। ओके, नाउ मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, do not hold organizational meetings, do not conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party do not get sufficient information that what happens inside the party। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ना तो मीन्स उसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, या मीन्स चेयरपर्सन कौन होगा, डिप्टी चेयरपर्सन कौन होगा, इसके लिए ना तो कभी कोई रजिस्टर बनाया मीन्स इलेक्शन कराया जाता है, ना तो कोई रजिस्टर बनाया जाता है कि पार्टी के कौन कौन से लोग मेंबर हैं, ना तो कोई ऐसी कभी मीटिंग हुआ करती है कि लोगों को सारे इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताया जाए, जो भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं। ठीक है, लोगों को बताए भी नहीं जाते। इवन पार्टी के जो बहुत सारे मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। सो दिस इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी दैट टुडेज पॉलिटिकल पार्टीज फेस in today's democratic politics। Okay, so they do not have the means or the connections needed to influence the decisions. As a result, the leaders assume great power to make the decision in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue the party। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि जो सारे डिसीजंस होते हैं वो पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो या फिर उन लोगों के पास में ही पूरी पैरामाउंटेंसी होती है। कोई भी डिसीजन टेकअप करना होता है वही अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पैरामाउंटेंसी को दिखा करके वो किसी भी डिसीजन को टेकअप करते हैं। इवन बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो उससे मीन्स डिसएग्री करते हैं, बट उनको डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए डिफ़िकल्टी भी होती है कि वो लोग पार्टी में बने रहें, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी को शिफ्ट कर जाते हैं। ओके, आपने बहुत बार सुना होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे एमएलए या एमपी होते हैं, जब किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि दैट आई वॉज इन द लिमिटेशन देयर, आई वॉज नॉट फ्री टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस लाइक दिस समथिंग। बहुत सारी चीज़ें वो बोल रहे होते हैं कि हमें वहाँ पार्टी में बंधन में रहना पड़ता था, हमें वो सारी लिबर्टी नहीं प्रोवाइडेड थी जो हम कहना चाहते थे, या फिर पार्टी ठीक से वर्क नहीं कर रही थी। सो दीज आर द प्रॉब्लम अराइज इन टूडेज डेमोक्रेसी। सो देयर मस्ट नॉट बी द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ओके, पार्टी में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी हो, बट टुडे इन टूडेज डेमोक्रेसी, इन टूडेज पॉलिटिकल पार्टीज, there is the lack of internal democracy, and this is the major challenge for them। Okay, now the next point says that more than loyalty to the party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes मोर इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हो जाता है कि पार्टी की जो सिद्धांत है, पार्टी की जो भी पॉलिसीज़ है, उसको लेकर के लोग उतना ज़्यादा लॉयल नहीं होते जितना कि वो अपनी पर्सनैलिटी मीन्स अपने पर्सनल लॉयल्टी को लेकर के लॉयल होते हैं। मीन्स वो अपने पर्सनल वर्क करने लग जाते हैं, ना कि पार्टी के प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ को लेकर के टास्क करते हैं। ओके, एंड दिस इज़ ड्यू टू द concentration and concentration of power or paramountcy of power to the some of the families or some of the party members। Okay, now moving ahead, second challenge to the political parties is dynastic succession। ओके, रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, ये भी पहले वाले से ही बिल्कुल मतलब रखता है। जैसे पहले में बताया गया कुछ लोगों तक ही जो पैरामाउंटेंसी होती है या फिर उसके जो मेन पोस्टेज होते हैं वो सीमित होते हैं, वो उसी से रिलेटेड है डायनेस्टिक सक्सेशन भी। कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, उसका मीन्स वो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, तो उसी का जो बेटा होगा वो चेयरपर्सन प्रेसिडेंट होगा, फिर उसी का बेटा चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होगा। ऐसा आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं। मीन्स आपके पास में बहुत सारे अपने नियर बाई आप देखेंगे सर्कल में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू पर्सनिफाई एनी वन, बट यू कैन सी इन योर नियर बाई स्टेट्स और parties that what is happening and how the main positions like the president of the party or chairperson of the party are confined to the स्पेशल फैमिलीज़। ठीक है, वो कैसे पार्टीज़ तक ही सीमित रहते हैं, पार्टीज़ तक ही मीन्स पार्टी के कुछ ही फैमिलीज़ तक पार्टी के जो मेन पोस्ट होते हैं वो सीमित होते हैं, ये आप देख सकते हो। तो पहला ये जो फर्स्ट चैलेंज वाज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डायनेस्टिक सक्सेशन। ओके, डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स इफ देयर इज द वन लीडर then his son or daughter will be the leader, then his son or daughter will be leader. In this way there begins a hierarchy। Okay, so this is the second major challenge of the political parties। Okay,
Now, since most political parties do not practice open, transparent procedures for their functioning, there are very few ways for ordinary workers to rise top in the party. ठीक है, जो लोग सामान्य कार्यकर्ता लोग होते हैं वो पार्टी के बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाए, ये बहुत ही कम होता है कि वहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग भी नहीं होती है कि हाँ मीटिंग होगी, सारे लोगों को सभी पॉलिसीज और प्रिंसिपल के बारे में पता लगेगा, पार्टी क्या करने वाली है किसी को पता नहीं लग पाता. ठीक है. Those who happen to be the leaders in a position of unfair advantage to favor the people to close out to them or even their family members. ठीक है, बताया कि देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया गया, इन द वेरी क्लियर सेंस दैट दे फेवर ओनली दोज हु आर क्लोज टू देम. सिर्फ वो उन्हीं को फेवर करते हैं जो उनके क्लोज हैं, और फिर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को फेवर करते हैं कि उन तक ही जो बड़ी पोस्टें हैं किसी भी पार्टी की वो सीमित रहें, कि उसका सेक्रेटरी कौन होगा, उसका चेयरपर्सन कौन होगा, उसका डिप्टी चेयरपर्सन कौन होगा. ठीक है, ऐसे जितने भी बड़े पोस्टेड हैं या प्रभारी कौन होगा, ठीक है, ये सभी वो लोग अपनी फैमिलीज तक, अपने क्लोज, अपने रिलेटिव तक ही सीमित रखते हैं. Okay, so the two major challenges for the political parties are lack of internal democracy. Second, that one is also related to the first one, is of dynastic succession. Okay, now moving to the third challenge of the political parties. थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोविंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. आज के डेट में जब भी आप देखते हो कोई भी इलेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके मेंबर्स, उनके जो भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं, सब के सब बहुत सारे पैसे, मीन्स मनी और मसल पावर दोनों का ही यूज़ करते हैं सारे वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मनी एंड मसल बोथ पावर का यूज़ करते हैं. आपको पता है जो कॉमन पीपल है उनके पास पैसे तो है नहीं, तो वो लोग पैसे की मीन्स बाय मनी परसुएट करते हैं लोगों को वोट के लिए. ओके, देन आफ्टर वो मसल पावर का भी यूज़ करते हैं, लोगों को डराते धमकाते भी हैं कि अगर हमें वोट नहीं देंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज ऑफ ग्रोविंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग द इलेक्शंस. ओके, एक दूसरे के मीन्स जो वोट होते हैं उनको कट करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे मीन्स जितने भी वोटर्स होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनको लोग परसुएट करने के लिए मनी और मसल पावर दोनों का यूज़ करते हैं. क्लियर? सो क्लियर है ये. थर्ड चैलेंज क्या है, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. जबकि आपको पता है किसी भी डेमोक्रेसी में वी हैव द राइट दैट वी कैन इलेक्ट एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बाय आवर ओन चॉइस. ओके, हम अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को हम इलेक्ट कर सकते हैं, किसी को नहीं इलेक्ट कर सकते हैं. बट क्योंकि वहाँ पर जब पैसे की बात आ रही होती है, ठीक है, पावर ऑफ मनी, ओके, एंड पावर ऑफ मसल, ये जब दोनों की बात आ रही होती है तो फिर हम वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो चॉइसेस हैं उनको हम इग्नोर करके दूसरे को इलेक्ट करने पर विवश हो जाते हैं. ओके, सो दिस शुड नॉट हैपन इन ए डेमोक्रेसी. ये कभी भी एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू एक्सप्रेशन ऑल्सो. ओके, यहाँ पर सभी के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल राइट होता है, कोई किसी को भी इलेक्ट कर सकता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट चैलेंज इज, इट इज़ ऑल्सो मच इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज़ द ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. ठीक है, ये बहुत बार होता है, देखा जाता है, बहुत सारी ऐसी स्थिति में होता है बच्चों कि लोगों के पास में एक अच्छा सा चॉइस नहीं होता कि वो उसको इलेक्ट करें, है ना. आपको पता है एक तो इंडिया क्या है, इंडिया इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, इंडिया क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है. यहाँ पर कोई पार्टी ए है, पार्टी बी है, सी एंड पार्टी डी एज वेल. देयर आर 4 पार्टीज दैट आर गोइंग टू कंटेस्ट द जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा. अब लोकसभा के जनरल इलेक्शन को ये कंटेस्ट करने जा रहे हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये हो गई, हाउ द पीपल्स विल बी एबल टू चूज़ द बेस्ट वन ऑफ देम. इनमें से सबसे बेस्ट कौन होगा, इनमें से बेस्ट कौन होगा, उसको इलेक्ट करने में कैसे लोग पॉसिबल मीन्स कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, कैसे चूज़ कर पाएंगे कि हाँ ये बेस्ट है. ओके, तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई. मल्टी पार्टी सिस्टम का ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, दैट द वेरी डिमेरिट ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम दैट इज़ द सिलेक्टिंग बेस्ट एमंग मैनी पार्टीज़. ठीक है, सबसे अच्छा कौन होगा उनमें से किस एक पार्टी को चुनना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, क्योंकि सभी पार्टीज़ के मैंने पहले ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पार्टीज़ हैव द प्रिंसिपल. ओके, उनके पास में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कौन कौन से वर्क करेंगे. ये इलेक्शन कैंपेन में बिल्कुल क्लियर हो गया होता है, इलेक्शन कैंपेन में. ठीक है, तो यहाँ मुश्किलें होती हैं कि किसको हम इलेक्ट करेंगे. देन आफ्टर द प्रॉब्लम अराइजेज. ओके, मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट पार्टीज़ डू नॉट क्लियर दैट हु विल बी द लीडर. ओके, लीडर कौन होगा पार्टी ये भी नहीं क्लियर कर रही होती है, तो वहाँ पे बड़ी समस्या होती है.
कि हम किस पार्टी को इलेक्ट करें। ओके, कभी कभी क्या होता है, जब एक बहुत बड़ा सा कोलिशन बन रहा होता है, जैसा कि अभी लास्ट जनरल इलेक्शन में हुआ था। ओके, यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, ओके, देयर वॉज ए मेजर कोलिशन। ओके, एक बहुत बड़ा गठबंधन बना हुआ था, और फिर भी उसमें क्या था, एक लीडर की कमी थी कि वो एक्चुअल में लीडर कौन होगा, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी वहाँ पर बिल्कुल ही एब्सेंस थी, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं थी वहाँ पे। इसलिए लोगों के पास में एक अच्छी चॉइस ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो वोटर्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो the last challenge is the political parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters। ठीक है, लोगों के पास में एक अच्छी सी चॉइस नहीं होती। In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different। In recent years, there has been a decline in the top biological differences among the political parties in most part of the world। For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little। ठीक है, इन दोनों ही पार्टीज़ में आपको याद रहे, ये ब्रिटेन की दो पार्टीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दो ही पार्टी हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। वो कौन सी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। एक अच्छा सा जनरल क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ जनरल नॉलेज के लिए, कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देयर वाज द रूल ऑफ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ओके, भारत जब स्वतंत्र होता है उस समय पर लेबर पार्टी की ही सरकार थी वहाँ पर। ठीक है, क्लेमेंट एटली उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपको ठीक से याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये दो ही पार्टी वहाँ की हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जो ब्रिटेन में इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। ओके, सो ब्रिटेन इज आल्सो नोन एज बाई पार्टी सिस्टम। ओके, सो दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल्स हाउ पॉलिसीज़ आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल एस्पेक्ट एक जैसे हैं, बट जो डिफरेंसेस हैं, पॉलिसी को कैसे फ्रेम करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। तो लोगों को वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सी पार्टी बेटर है, किसको इलेक्ट करें। ओके, सो दीज आर द मेजर 4 challenges faced by the political parties in today's democracy। First one was, I have told you, the lack of internal democracy। Okay, first, lack of internal democracy। Okay, second one was the dynastic succession। Third one was the use of money and muscle power। Okay, money and muscle power। And fourth one is there is the lack of meaningful choice to the voters। Okay, so you must remember it, lack of internal democracy, dynastic succession, money and muscle power, and fourth one is the lack of meaningful choice to the voters। Okay, so I hope you all have get all this point, that what are the major challenges faced by the political parties in today's democracy। Once more I am telling you, these major challenges are, first one is the lack of internal democracy in the political parties, first point। Second point, dynastic succession। Okay, dynastic succession in the political parties। Third one, use of money and muscle power during the election। And fourth challenge, lack of meaningful choice to the voters। Okay, meaningful choice to the voters। Okay, so these are the major challenges faced by the political parties in today's democracy, especially in India। Now moving to the next question, next topic, how political parties could be reformed। political parties को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, अभी जो हम लोगों ने जितनी सारी प्रॉब्लम पड़ी हुई है उनको हम कैसे रिफॉर्म करेंगे। Now we are going to talk about this। So there are also 4 or 5 points। Okay, first one is the question, you must remember how political parties can be reformed। Okay, so the first answer is, constitution was amended to prevent elected MLAs or MPs from changing parties। Okay, सबसे पहला क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं, अभी हम जब बात कर रहे थे चैलेंजेस की, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर कुछ एक लोग एक पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में जाकर वहाँ बोलते हैं ना यार, नाउ आई एम फीलिंग वेरी फ्री, मैं अब बहुत स्वतंत्र हूँ, बहुत लिबरल हूँ, बिल्कुल यहाँ पर उन्मुक्त होकर के उछल कूद रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं ना पार्टी चेंज करके। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, पहले के टाइम पर हुआ करता था, लोग इलेक्शन तो किसी दूसरी पार्टी से कंटेस्ट करते थे
ओके, बट जीतने के बाद से वो किसी दूसरी पार्टी में जा कर के इन्वॉल्व हो जाते थे। ओके, सो इनको रोकने के लिए क्या हुआ, एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। व्हाट? एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप प्रिवेंट दिस थिंग। ओके, that when a member is contesting election with party A, then he could not change to party B after winning the election। ठीक है, टिकट किसी और पार्टी ने दिया, जीता उन्होंने सीट इस पार्टी से, और वो जा कर के मिल गए दूसरी पार्टी में अपनी सीट को जीतने के बाद से। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। ओके, डिफेक्शन मीन्स चेंजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय द MLAs आर MPs आफ्टर कंटेस्टिंग इलेक्शन। ओके, मीन्स इलेक्शन को कंटेस्ट करने के बाद से, सीटों कॉन्स्टिट्यूंसियों को जीतने के बाद से किसी भी MP या MLA के द्वारा सीट को मीन्स पार्टी को चेंज करना, हम उसको डिफेक्शन बोलते हैं। और इसको रोकने के लिए जो लॉ लाया गया था, टू प्रिवेंट दिस देयर वाज ए लॉ और देयर वाज ए एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज, यू मे राइट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 लाया गया, और इसी के तहत 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, 10th शेड्यूल, यू मस्ट रिमेंबर इट, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was introduced, okay, and there the anti defection law was provisioned। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज प्रोविजन। एंटी डिफेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डिफेक्शन का मतलब पार्टी को चेंज करना, इलेक्शन को जीतने के बाद से, टू चेंज द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, ओके, बाय MPs आर MLAs इज नोन एज डिफेक्शन, एंड टू प्रिवेंट दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन। ओके, सो फर्स्ट पार्टी टू रिमूव to reform the party, there was a constitutional amendment, okay, and it was anti defection law introduced in 1985। याद रहे आपको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1985 में। इसको हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 10th शेड्यूल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो वंस मोर मेक इट क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट द MLAs and MPs from changing parties। This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers for और कैश रिवार्ड। ठीक है, पैसे के लालच में या फिर मिनिस्ट्री पाने के लालच में लोग एक बार पार्टी को मीन्स अपने इलेक्शन को जीतने के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के बाद से किसी और पार्टी से वो किसी दूसरी पार्टी में इंडल्ज हो जाते थे। ठीक है, मर्ज हो जाते थे, तो इसको रोका गया। ठीक है, नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी MP or MLA changes parties, he or she will lose the seat in the legislature। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द डिफेक्शन डाउन। ठीक है, पार्टी को चेंज करने की जो प्रवृत्ति थी, इससे क्या हुआ है, इस लॉ से वो सब कुछ कम हुआ है। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। MPs और MLAs हैव टू एक्सेप्ट व्हाट एवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए, अब ये भी प्रॉब्लम है कि एक तो वो सीट अगर मान लीजिए जीत लिया किसी दूसरी पार्टी से, किसी पार्टी से जीत लिया, अब वो पार्टी को सीट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ऐसा लॉ बन गया, तो कहीं पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर कभी कभी वो पार्टी से सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर अपनी वो मीन्स पार्टी चेंज करेगा तो अपनी सीट को खो देगा, है ना, लेजिस्लेचर में अपनी जो प्रेजेंस है उसको खो देगा, और साथ और उसकी या फिर उसको वो सारी चीज़ें मानना पड़ेगा जो पार्टी के लोग जिसको डिसाइड करेंगे, जो पार्टी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे, वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बेनिफिट भी है और प्रॉब्लम भी है। तो हम लोगों को जो ज़रूरत है यहाँ पे बच्चों, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट एंड वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, सो our problem is, and our main concept must be that we should be very aware, and this is known as the political consciousness। okay, political कॉन्शियसनेस, इसको हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बोलते हैं बच्चों। हम लोग को पॉलिटिकली क्या होना होगा, जागरूक होना होगा, हम लोग को पॉलिटिकली अवेयर होना होगा दैट वी इलेक्ट सच द रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ मच बेटर, जो बहुत अच्छा हो, हम उसको पूरी तरह से जज करके, उसकी पूरी तरह से एनालिसिस करके ही हम उसको इलेक्ट करें, उसको वोट दें। हमारा जो वोट वैल्यू है, हम अपने वोट को बिल्कुल मीन्स ऐसे ही जाया ना होने दें, ओके, बेकार ना होने दें। क्लियर? Now this was the first method by which we can reform the political parties. Second point, the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals
Now it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit giving the details of his property and criminal cases pending upon against him। ठीक है, अब कुछ हद तक ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक लॉ बना रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसको अपनी एक एफिडेविट देनी होगी। एफिडेविट का मतलब ये होता है सारी डिटेल्स बताना अपने बारे में, उसके पास कितनी लॉयल्टी है, कितने प्रॉपर्टी हैं, कितने एसेट हैं और कौन कौन सी ये सारे क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है, उसे एफिडेविट पर, इसको बयान हल्फी बोलते हैं दिन हिंदी में। ठीक है, उस पर लिख करके उन्हें क्लैरिफाई करना होता है, या I have such amount of property and I have these cases, I have these cases pending against me। ठीक है, मतलब उसके खिलाफ में कौन कौन से केसेस पेंडिंग हैं और कौन कितनी सारी उसके पास प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें उसे एफिडेविट में मेंशन करके बतानी होती हैं इलेक्शन कमीशन को। ओके, सो इससे भी पार्टी को कहीं ना कहीं रिफॉर्म किया जा रहा है। दिस सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक बट देयर इज़ नो सिस्टम टू चेक द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि हाँ उन्हें एफिडेविट फाइल करना होगा और एफिडेविट में अपनी सारी लॉयल्टी, प्रॉपर्टी, एसेट, कोलेटरल और उसके साथ साथ में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको बताने होंगे। बट यहाँ पर एक जो लैक है बच्चों, जो यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, ये कंफर्म नहीं किया गया कि रियल में अगर उसकी जांच करनी हो कि उसने जो भी डिटेल्स अपने बारे में दे रखी है वो ट्रू है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए एक वहाँ पर एक मेथड बनाना होगा कि लोगों को क्लियरली पता चले कि रियल में क्या हो रहा है। ओके, एज येट वी डू नॉट नो इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिचर क्रिमिनल्स। ठीक है, तो हमें इसके बारे में ताकि ठीक से पता लग सके। ओके, एज येट वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते इफ़ हैड बीन लेड टू द डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिचार क्रिमिनल्स। ठीक है, कि वास्तव में रियल में जो इलेक्शन है उसमें जो ये धनी लोग हैं, धनी लोगों का जो वर्चस्व है या फिर जो क्रिमिनल्स हैं इनका जो डोमिनेंस है ये कम हो रहा है या नहीं हो रहा है इस एफिडेविट की वजह से, ऐसा हम लोगों को कुछ पता लग नहीं पाता रियल में। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में मीन्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट किस बेस पर हो रहा होता है, बहुत टाइम हम लोग देखते हैं इन आवर कंट्री पार्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट, many times it happens that many of the criminal contest election and they won also। ठीक है, वो इलेक्शन contest भी करते हैं, वो जीतते भी हैं, even public knows that he is criminal। okay, so there is some problem, okay, and it should be improved। now moving ahead, election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organization elections एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा नियम बना रखा है कि पूरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पॉलिटिकल मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करना होगा और साथ ही साथ में वहाँ पर उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी देने होंगे। ओके, द पार्टीज़ हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी। कभी कभी क्या होता है, पार्टी ऐसा करती तो है लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेयर फॉर्मेलिटी, सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह जाती है, वो रियल में ये काम नहीं कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दिस स्टेप हैज़ लेड टू द ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, इससे पूरी ये भी नहीं क्लियर होता कि वास्तव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक बड़ी जो मीन्स डेमोक्रेसी है वो इंटरनल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, एक बार मैं इसको आपको फिर से बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। देखिए, हम लोग पार्टी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हाउ कैन वी रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, हम उनके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, पार्टी को कैसे और सुधारा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो पहले पॉइंट में हम लोगों ने बात किया, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट दैट द फर्स्ट पॉइंट वॉज हियर constitutional amendment, okay, that we were discussing about the एंटी डिफेक्शन। ओके, मीन्स वहाँ पर क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड क्या था, एफिडेविट को बताया गया कि एफिडेविट फाइल करना होगा। ओके, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज हैव टू फाइल एन एफिडेविट। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट वी लर्न दैट इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर टू मेक इट नेसेसरी टू द पार्टीज़ टू होल्ड दियर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। ठीक है, ये उनको ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने होंगे, ये पार्टी में कौन चेयरपर्सन होगा, डिप्टी चेयरपर्सन होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इलेक्शन के बेस पर तय करने होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बताया। सेकेंड वन, उनको अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी फाइल करने होंगे। ओके, और साथ ही साथ में बताया गया कि बट अभी तक ये सब कुछ एक औपचारिकता ही रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है कि वहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी आई है या फिर नहीं आई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, beside these many suggestions there are often made to reform political parties, a law should be made to regulate the internal affairs of the political parties। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि अभी तक इतने सारे सजेशंस के बावजूद भी जो पार्टी को अगर रिफॉर्म करने की बात आएगी तो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे नियम कानून बनने चाहिए जिससे कि जो पार्टी के इंटरनल अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए।
ठीक है। पार्टी में जो भी मीन्स काम होने, वर्क होने, वो किसी ना किसी लॉ के बेस पर होने चाहिए, ऐसा एक नियम बनना चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, पार्टी के कौन कौन मेंबर्स होंगे उसका रजिस्टर बनना हो चाहिए। ओके, एंड इट to follow its own constitution, to have independent authority, to act as a judge in case of party dispute, to hold the open election to the high postes। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बताई गई कि उनके पास में अपना एक संविधान होना चाहिए कि कौन कौन से रूल सबको फॉलो करने हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जज की अगर कभी कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो एक जज की तरह जो भी मीन्स वहाँ पर बिल्कुल जज होना चाहिए, केस को जज किया जाना चाहिए कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। साथ ही साथ में जो हाई पोस्टेज हैं, ओके, हाई पोस्ट जो भी पार्टी के हैं उनके लिए इलेक्शन होने चाहिए ताकि वहाँ पर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड बी मेड मैंडेटरी। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट किसी भी कैंडिडेट को दें। Okay, but it should be made mandatory for the political parties to give minimum number of ticket, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be quota for women in the decision making bodies of the party। ठीक है, कम से कम वो अपनी जो टिकट है उसका 1/3 कोटा क्या करें, वुमेंस को दें। ओके, औरतों को। एंड नेक्स्ट वन, डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी वुमेन का एक प्रॉपर रोल होना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी सेफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ओके, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके समझ में जल्दी से आ जाए तो अच्छी बात है, समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट दिस पॉइंट वांट टू से। एक्चुअली यू नो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड मेनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, बहुत सारा पैसा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती खर्च करती हैं उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से पैसे ले आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो राज्य है, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनको पैसे प्रोवाइड करने चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सारी पार्टीज़ को। ओके, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए। दिस सपोर्ट कुड बी given in kind of petrol, paper, telephone, or it could be given in cash on the basis of votes secured by the party in the last election। ठीक है, पार्टी ने लास्ट इलेक्शन में कितने वोट सिक्योर किए थे इस बिहाफ पर भी उनको पैसे मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ मनी है वो ड्यूरिंग द इलेक्शन वो खर्च होगा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट questions that are MCQs। okay, and I hope if you have studied well the chapter then you could be able to reply these answers, these questions very sincerely। okay, so your work is to go to the live chat box and you have to reply your answer। I will give you time, proper time। okay, and also you have to write this point in your notes। okay, 4 from challenges to the political parties and 4 points for how political parties could be reformed। okay, first one will be the affidavit, second one will be the defection, okay, third one will be the open party organizational election, okay, and fourth one must be the state funding। okay, now this question is what is the guiding philosophy of भारतीय जनता पार्टी। चलिए बताइए आप लोग, व्हाट इज़ द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। योर ऑप्शंस आर बहुजन समाज, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड मॉडर्निटी। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो गाइडिंग फिलोसफी है वो क्या है, मतलब वो किन सिद्धांतों पर काम कर रही होती है। यस, टेल मी एवरीवन, योर ऑप्शंस आर हियर। बहुजन समाज, ओके, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, थर्ड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड फोर्थ मॉडर्निटी। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D। okay, means Bharatiya Janata Party want to introduce modernity, even there was told that it also believes in the existing tradition and cultures। ठीक है, ये बताया गया था बच्चों कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो हमारे एंशियंट कल्चर है उनको तो बचा के रखना चाहती है, साथ साथ में ये मॉडर्निटी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म। हु इज़ नोन एज father of socialism। okay, your options are Rousseau, okay, Aristotle, Karl Marx and Plato।
Yes, give your answer everyone. Who is known as the father of socialism? Yes, very good. So the correct answer is Karl Marx. Okay. Next question is, which one of the following is not the guiding principle of Communist Party of India, that is CPI? Which one of the following is not the guiding principles of CPI? CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नहीं है? ओके, बहुत केयरफुल रहेंगे आप क्वेश्चन के टाइम पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं, बी बिल्कुल नहीं, नो आंसर नंबर, और ऑप्शन नंबर सी नो। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द कैपिटलिज्म। ओके, कैपिटलिज्म इज नॉट एन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। Moving ahead, the next question is, who among the following is the founder of बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज काशीराम, सेकंड साहूजी महाराज, थर्ड BR अम्बेडकर एंड फोर्थ वन ज्योतिबा फुले। गिव योर रिप्लाई प्लीज एवरीवन, हरी अप। yes, very good. Yes, the correct answer is काशीराम, option number A. Okay, so founder of Bahujan Samaj Party is Kasiram. Next, in which year CPIM, Communist Party of India, Marxist came into existence? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये किस साल एग्जिस्टेंस में आई, मतलब किस साल इस्टेब्लिश हुई? ऑप्शंस आर 1925, 1985 and 1984. The last one is 1964. So the correct option will be 1964. Very good. Okay, now in which year Anti-Defection Act was introduced? ये आपको बताना होगा, बिल्कुल आप बताएंगे, मैंने इसको ठीक से पढ़ाया, आपको बताएंगे आप लोग। इन विच ईयर Anti-Defection Act was introduced? Your options are 1954, 1964, 1975, 1985. Yes, the correct answer is 1985. Okay, it was 52nd Constitutional Amendment Act. Okay, now the next question is, which one of the following is not an supporter of UPA? इनमें से कौन UPA का सपोर्टर नहीं है? ओके, इनमें से कौन सा UPA का सपोर्टर नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन सपोर्टर ऑफ UPA? ऑप्शंस आर CPI, CPIM, JDU, NDA. So the correct answer will be NDA, National Democratic Alliance, is not a supporter of UPA. Okay, so I hope you all have enjoyed this session. Thanks for watching everyone, and kindly note this point in the notes, and do not forget to subscribe the channel, okay, so that when the latest videos are provided to you, then you could be notified with the updates. Okay, thanks for watching everyone. Have a good day.